नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो हम ये आज से किताब शुरू कर रहे हैं रेडर्स इन कश्मीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान जी की लिखी हुई किताब है। प्रीफेस Nehru called us raiders. He did so in derogatory sense, but what he did not know was that raiding is nowadays an accepted, very highly developed branch of art of war. Aircraft, commandos, guerrillas, motorized infantry, artillery group, submarines, even gentlemen of cloak, dagger tradition are also increasingly used for hit and run tactics to achieve objects of war. So we can, I think, without indignity, retain the name raiders. Particularly so when the fighting techniques of the frontier tribesman does, in the military sense, make him indeed a very competent and daring type of raiders. यहाँ पे अकबर खान कह रहे हैं कि नेहरू जो है वो हमें रेडर बोलते हैं। रेडर बोलते हैं क्योंकि इन अ डेरोगेटरी वे, लेकिन हम जो है इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ और अचीवमेंट के साथ जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में जो रेडिंग है वो एक टेक्निक है, आर्ट ऑफ वॉर है। आगे वो लिखते हैं, besides as raider we may perhaps also qualify for sitting in that distinguished gallery of personalities like Chinggis Khan, Taimur Lung, Muhammad Ghaznavi, even Alexander, whom some historians called raiders। तो उन्होंने अपनी जो पदवी है उसको इन सारे लीडर्स के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम रेडर्स हैं तो हम इनके साथ जो है वो हमारा कंपैरिजन बनता है, और जो हिस्ट्री है वो हमें अकबर खान जी के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो बहुत प्राउडली डिस्कस करेगी। This book, being only a personal account, not a detailed history of Kashmir war, is limited in scope with regard to the area, the period, the event that it covers. Even so, the reader will, I hope, get a bird's eye view of the war, the problem as whole. Chapter 18, How to Liberate Kashmir Now, covers the period after the ceasefire, reflections on the future course. The last chapter is added to give historical sketch of tribesmen. My grateful appreciation is offered to those who have helped me in number of ways and to those for whom I have quoted here. अब हम चैप्टर 1 पे पहुंच गए, पर प्रीफेस जो है वो खत्म हो गया। पहला चैप्टर है द रीडर्स। For the century in the bazaars of Peshawar city, the art of storytelling has been practiced, and there I have listened many times, spellbound to master of art. Yet, coming to this story, I find I am not much of a storyteller myself. I don't rightly know how and where to start. So I will begin where I saw them first, when from out of deep mist in the valley of Kashmir began to emerge figure that looked larger than life size and moved effortlessly like the panthers। तो यहाँ पे ये जो ट्राइब्समैन हैं, जो ट्राइबल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो जिनको अ, लगाया गया था कश्मीर में रेड करने के लिए, उनकी बात कर रहे हैं कि मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पहली नज़र में उनको देखा, मैं वहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्शन शुरू करता। These were the raider. In the silence they crept forward carefully but with ease. In the dark, across broken grounds and fields, to close in upon the enemy. It was midnight on 29 October 1947, having penetrated into state at lightning speed, 115 miles in 5 days. They were now just 4 miles from Srinagar, within sight of its twinkling lights। यानी कि यहाँ पे ये अपना एक तरह से कन्फेस कर रहे हैं कि जो ट्राइब्समैन थे उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। अगर पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट नहीं था तो वहाँ से जो पेनिट्रेशन हुई, वहाँ से जो ट्राइबल मैन
ने अटैक किया, जो एक तरह से रेड किया उस स्टेट के ऊपर, उसको इन्होंने देखा, इनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, स्टिल इन्होंने जो है उस चीज को रोका नहीं, और ये बड़ी ही प्राउडली उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 29 अक्टूबर 1947 को मेरी आंखों के सामने जो है वो सारे जो लार्जर देन लाइफ रेडर्स हैं, वो कश्मीर में घुसने की पूरी तरह से वो जा चुके थे, और थोड़े 4 ही मील दूर थे श्रीनगर से। 30 miles behind them was Baramulla, sacked 3 days earlier, where out of 14,000, only 3,000 were said to have survived. यानी कि ये खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जहाँ पे वो रेडर्स थे, उससे 30 मील पीछे बारामूला है। बारामूला जहाँ पे टोटल इनके हिसाब से पॉपुलेशन 14,000 में से केवल 3,000 लोग बचे थे। बाकी के लोग कौन थे? उनमें से ज़्यादातर हिंदू थे, लेकिन उनमें मुस्लिम्स भी थे। तो ये जो इस्लाम का झंडा फहराने वाले लोग हैं, ये इस्लाम का झंडा केवल नाम है, एक्चुअली ये अथॉरिटी की लड़ाई है। The Maharaja had fled from Srinagar, reporting to India that wild forces let loose on the state were marching on with aim of capturing Srinagar as a first step to overrunning the whole state। यानी कि जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो महाराजा थे हरि सिंह जी, वो इंडिया के पास भागते-भागते गए और उनको बताया कि ये यहाँ से जो है एक बड़ी ही बहुत वाइल्ड फ़ोर्स आ रही है, जो कि सब कुछ कुचलती हुई आ रही है, और सर्टेनली श्रीनगर तक पहुँचने वाली है, और श्रीनगर पर अगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो पूरी स्टेट पे उनका कब्ज़ा हो जाएगा। At Delhi, VP Menon, advising military aid for Kashmir and remembering 8th century of invasion from the north and 17th incursion of Mahmud of Ghaznavi, had thought Srinagar today, Delhi tomorrow। यानी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वीपी मेनन थे, उन्होंने दिल्ली में जो है ये उन्होंने बताया कि अगर इसको ना रोका गया तो आप याद कीजिए वो समय जब महमूद गजनवी आया था, और जब जो है वो कश्मीर के अंदर 8th सेंचुरी में इन्वेजन हुई थी नॉर्थ की तरफ से। अगर आज नहीं रोका गया तो वैसा ही समय जो है वो आ जाएगा। आज वो कश्मीर पे अटैक कर रहे हैं तो कल वो दिल्ली पे अटैक करेंगे। और इस चीज को आप ये समझिए कि यहाँ पे जो अकबर खान है वो बहुत ही प्राउडली इन चीजों को बता रहे हैं। इनका एटीट्यूड देखिए, जब ये लिख रहे हैं तो उसके पीछे का एटीट्यूड, माइंडसेट जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। Thus, Indian troops had been followed in the next day and assisted by fighter aircraft and artillery. They had immediately advanced to meet the raiders, but had been thrown back in confusion, and their commander, Colonel Rai, killed. Now, near Srinagar, at fourth milestone, across the raiders' path lay a road block, guarded by machine gun fire sweeping the front and supported by artillery fire from further behind। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम आगे गए, फिर उस जो महाराजा है वो दिल्ली के पास गए, दिल्ली से वीपी मेनन ने जो है वो सजेस्ट किया, बीच का वो बताना भूल गए कि जो महाराजा है उन्होंने एक्सेशन भी इंडिया के साथ साइन कर लिया, और जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख का जो एरिया है पूरा का पूरा भारत में ऑफिशियली जो है वो अनेक्स हो गया। उसके बाद ये बीच में से ये खा गए, क्योंकि अपने लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो वो इंफॉर्मेशन इसमें वो डालेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद जब इंडियन आर्मी आई तो उनके जो कमांडर हैं कर्नल राय, उनको मार दिया गया। तो इसलिए कंफ्यूजन फैल गई उनके अंदर। गॉड, और आगे वो बोल रहे हैं जब रेडर्स आगे बढ़ रहे थे, फोर्थ जो माइलस्टोन था वहाँ पे मशीन गन्स लगी हुई थी, यानी कि आप एस्टिमेट कीजिए कि किस लेवल की जो है वो वॉर हो रही थी। As the raiders moved forward, they started encountering more and more of perennial water that surrounds Srinagar.
Water from river, lake, rains, all contributing. They found themselves converging on the main road because of this water, and ultimately it looked as if only one left to deal with the obstacle was to go it straight down द रोड। यानी कि वो आगे बता रहे हैं कि आगे जाकर उनको पानी से बहुत ज़्यादा जो है वो घिर गए वो, जो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, नदियों का पानी हो गया, बारिश का पानी हो गया और सारे पानी हो गए। ये सब कुछ घेर लिए, इसकी वजह से जो रेडर्स हैं वो थोड़े से उनको ऑब्स्टेकल्स आ रही थी पानी की वजह से। अगला सेकंड चैप्टर पे हम पहुंच गए, द रीजन वाई। ये देखिए, ये जो किताब है वो एक पाकिस्तानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के थ्रू लिखी गई है, तो इसको उसी तरह से लीजिएगा। द रीजन वाई, व्हाट हैड ब्रॉट द ट्राइबल्समैन इनटू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्चुअली जो ट्राइबल्समैन थे वो कश्मीर पे आए क्यों। It was the deep concern they had felt and shared with all other Muslims about the future of the state. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Deep concern they had felt and shared with all other Muslims about the future of state. यानी कि यहाँ पे रिलीजन जो है वो ओवर पावर कर रहा है। तो पहला रीजन जो है ये जो बता रहे हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड अकबर खान जी, पहला रीजन जो है यहाँ पे क्लियर कट आपको रिलीजन दिख रहा है। Less than 4 months earlier, on 15 August 1947, the subcontinent of India had achieved independence and two new states, Pakistan and India, had come into existence as autonomous dominions within British Commonwealth. Although on that day the British government had relinquished all authority in the subcontinent। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये 15 अगस्त की डेट खुद बता रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो डिवीजन हुई थी और वो डोमिनियन स्टेट्स जो बने थे वो 15 अगस्त 1947 को बने थे। तो आज के समय में ये जो पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं ना वो 14 अगस्त को अपना मनाते हैं, वो भी गलत डेट है। एक्चुअल में वो 15 अगस्त को ही डेट है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से डोमिनियन स्टेट्स बनाई और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर बनाई। हाँ, वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ऑल्दो के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी जो है वो नए गवर्नमेंट्स जो है उनको दे दी थी, still could not immediately exercise their power in full over the whole area because within 400 million people, 1,777,438 square miles of old India, therefore there had existed some 568 old principal states, some of which had not yet declared their accession to either dominion। यानी कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फिर भी जो गवर्नमेंट बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान, उनका जो कंट्रोल है वो सारे एरिया पे नहीं था, क्योंकि कुछ प्रिंसिपली स्टेट्स जो है, प्रिंसली स्टेट्स जो है, उनके बीच में अभी असमंजस था। उन्होंने किसी भी एक डोमिनियन के साथ एक्सेशन नहीं किया, वो अभी भी सोच रहे थे। कुछ लोगों को लालच भी दिए जा रहे थे, कुछ लोग अभी सोच भी रहे थे। These princely states had been given the right to decide for themselves which of the two dominions they would join. Since they could not remain independent, it had been generally expected that they would make the decision by the date of partition or soon afterward। यानी कि फिर जो लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उनको थोड़ा टाइम दे दिया गया और उनको ये भी राइट था कि वो खुद से डिसाइड कर सकें कि वो दोनों डोमिनियन में से किसको ज्वाइन करेंगे। क्योंकि मतलब कई लोग अभी सिर्फ असमंजस में थे, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, तो उनको थोड़ा टाइम दे दिया गया। थोड़ा टाइम कई लोगों ने 1947 आते आते डिसाइड कर लिया, जिन्होंने कुछ नहीं डिसाइड किया था तो उनको इतना टाइम दे दिया गया कि चलिए इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो आपको ये टाइम दे दिया जाता है। Most of them in fact did so,
Some that I remained were geographically so enclosed within the area of one or other dominion that their accession to the relevant dominion was considered only a matter of form. यानी कि कई प्रिंसिपली स्टेट्स ऐसी थी कि जो लार्जर इंडिया में अगर वो इनक्लोज्ड है, क्योंकि लैंड लॉक है अगर, तो फिर उन्होंने ये सोचते हुए कि चलिए इसी दोनों दोनों डोमिनियन के साथ है, उन्होंने फिर उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो डिस्टेंस की वजह से आप कह लीजिए, या क्योंकि वो किसी एक डोमिनियन के अंदर आ गए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने उसी नेशन में जो है एक्सेस कर लिया। उन्होंने मतलब जल्दी ही डिसीजन ले लिया, कई प्रिंसली स्टेट्स ने जल्दी ही ये डिसीजन ले लिया। Among those still remaining undecided, the most important was Kashmir. यानी कि जो जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर था। कुछ और भी थी, लेकिन उनका इतना ज़्यादा कोई पंगा नहीं था, क्योंकि उनको अल्टीमेटली जो जो पाकिस्तान के करीबी एरिया में थे, उनको ये था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जिनको जो इंडिया के करीबी एरिया में थे, तो उनको था कि हाँ, हम इंडिया में ही एक्सेशन जो है वो कर लेंगे। लेकिन कश्मीर जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, पहला कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, एंड वन whose geographical location was significant to the whole subcontinent, as not only was it contiguous with Pakistan in India, but its north, just a thin strip of Afghanistan separated it with the सोवियत यूनियन। क्योंकि एक तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट था, तो ये लैंड भी बहुत ज़्यादा था, और दूसरा पॉइंट ये था कि ये सोवियत यूनियन जो है उसके जो जम्मू कश्मीर का नॉर्थ है वो सोवियत यूनियन के बहुत ही करीब तक उसका बॉर्डर जाता था। केवल एक स्ट्रिप है अफगानिस्तान की जो उनको सेपरेट करती थी। इट ऑल्सो हैड अ कॉमन बॉर्डर विद चाइना, और चाइना के साथ भी कॉमन बॉर्डर था। सिंस द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अबाउट द फोर्थ कमिंग partition, we had assumed that Kashmir would naturally join Pakistan. यानी कि अकबर खान जी जो पाकिस्तान एज अ नेशन जो है उसको उसका जो माइंडसेट, वहाँ पे जो मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट है वो एक तरह से जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको लगा कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को ही मिलेगा। In fact, the very concept of Pakistan had included it as an integral part, the letter K, in the name of Pakistan standing for Kashmir। अच्छा, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये पहली बार आर्गुमेंट सुना कि जो पाकिस्तान में के है वो के जो है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, जेन्युइनली बता रही हूँ, ये मैंने पहली बार आर्गुमेंट पढ़ा, इसी किताब में आर्गुमेंट पढ़ा। The subcontinent was to divided on the basis of Muslim majority area for Pakistan and non-Muslim majority area for India. Kashmir had to be in Pakistan because three-fourths of its 4 million inhabitants were Muslims, and its territory of 84,500 square miles had no effective road, rivers, rail links, nor direct economic ties with India. तो यहाँ पे ये अपना वो यूटोपियन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान के साथ ही आना था क्योंकि उसकी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम थी, जबकि जो राजा था वहाँ का उसको ये पूरा हक था कि वो डिसाइड करे कि उसको किसकी तरफ जा रहा है। जो किंग था, जो राजा था, उसको अगर ये ही, और मैं इसका रीजन भी बता रही हूँ क्योंकि क्यों इनका ये जो आर्गुमेंट था वो फ्लॉड है, क्योंकि ये वाला आर्गुमेंट इन्होंने जूनागढ़ पे नहीं लगाया। इन्होंने जूनागढ़ के जो जो ऑनर थे, ऑनर नहीं मैं मतलब वहाँ के जो किंग थे या जहाँ वहाँ के जो नवाब थे उनको मतलब बहला फुसला के पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए बोल दिया। वहाँ की जो इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन थी जूनागढ़ की वो मेजॉरिटी हिंदूज थी, तो उन्होंने रिबेल कर दिया किंग के अगेंस्ट कि हम कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वहां पे फिर वो इंडिया के साथ आ गए क्योंकि वहां के लोगों ने जो है वो रिबेल कर। यहाँ पे कश्मीर के ऊपर ये लॉजिक नहीं चल सकता क्योंकि कंप्लीटली जो किंग था उसके पास सिर्फ पावर थी, और किंग और
जो ऑब्वियसली वहाँ के जो एलीट थी वो आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ जो लोग थे उनके डिसीजंस को भी जो है वो कंसिडर करके वो डिसाइड कर सकते थे। तो ये जो आर्गुमेंट है ना इनका बहुत ही यूटोपियन टाइप का आर्गुमेंट है, क्योंकि अगर ये आर्गुमेंट इनको लगाना कि पॉपुलेशन इतनी थी तो इसके हिसाब से तो फिर सिंध में मेजॉरिटी हिंदू थे, पंजाब के कुछ एरियाज में मेजॉरिटी हिंदू थे जो पाकिस्तान में चले गए, तो फिर वहां पे भी ये लॉजिक लगाना चाहिए इनको, लेकिन वहां पे नहीं लगाएंगे। खैर, तो आगे चलते हैं। और ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे एरिया में जो है कोई रोड नहीं थी, कोई रेल लिंक्स नहीं थे, कोई इकोनॉमिक टाइज नहीं थे इंडिया के साथ, इसलिए इनका बनता नहीं है इंडिया के साथ जाना है। जबकि ये भी यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कश्मीर का एक्चुअली पंजाब के साथ, पंजाब इन द सेंस कि जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे, और जम्मू के साथ जो है वो जम्मू पंजाब आगे हरियाणा, यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल ट्रेड होता था। और कश्मीर के जो कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी वो पूरे इंडिया में जाती थी। ये बिल्कुल अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि कोई इकोनॉमिक टाइज नहीं थे इंडिया के साथ। The assumption therefore had been that the people of Kashmir would without hesitation wish to join Pakistan. But the non-Muslim ruler, the Maharaja, in whose hand the decision lay, had shown no significance of making an early decision. यानी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट है उनका यही, उनके मन में यही था कि जो कश्मीर है वो हमारे पास ही आएगा। ये अजम्पशन थी, यहाँ पे ये खुद ही बता रहे हैं कि ये अजम्पशन की हुई थी पाकिस्तान में। अजम्पशन पे वर्ल्ड नहीं चलता, वर्ल्ड रियलिटी पे चलता है। और इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि वहां पे जो महाराजा थे वो डिसाइड करने के लिए अभी थोड़ा हेसिटेट थे। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो किंग थे और जो वहाँ के जो एलीट थी वो ज्यादातर इंडिया के साथ ही जाना चाहते थे। खैर आगे चलते हैं। इन whose hand the decision lay had shown no significance in making of an early decision. Thus, some weeks after the British declared a few days before actual partition, while the Quaid-e-Azam, the founder and the Governor General of Pakistan, was still in Delhi, a large delegation had arrived at his home one afternoon to convey him its apprehension about the future of Kashmir. I had gone there along with member of Armed Forces Partition Subcommittee that the Maharaja, a non-Muslim, wished to avoid accession to Pakistan. यानी कि यहाँ पे ये खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो राजा है, जो किंग है वहाँ के, जो कि एक नॉन मुस्लिम है, वो जो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन है उससे थोड़ा एक तरह से उनके मन में हिचकिचाहट है। और ये खुद यहाँ पे आप देखें कि जिन्ना को ये इंफॉर्मेशन दी गई, आर्म फोर्सेस पार्टीशन की सब कमेटी थी कोई, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई। आगे obvious, but now the fear was that his hands were likely to be strengthened also by Sheikh Abdullah, a Muslim leader of Kashmir, hero of Indian national freedom movement, who had previously opposed the conception of Pakistan. यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राजा ही नहीं, वहाँ का जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर था कश्मीर का, शेख अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। दूसरा आर्गुमेंट इन्होंने ये बता दिया। The Quaid-e-Azam had, however, assured the delegation that he felt confident that the opinion of two persons alone could not distort the future of whole state. Firstly, he explained the idea of Pakistan had swept over Kashmir as it had over the rest of India, and thus by in Sheikh Abdullah, the Kashmiri Muslim would want to join Pakistan, and secondly, Kashmir had geographically no choice but to join us. अच्छा, ये इनकी ना अपनी ही ओपिनियन है, कश्मीर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ही ज्वाइन करना है। ये भी मतलब अपने ही दिमाग में बनाया हुआ था और अपने ही दिमाग में बना लिया था। अरे भाई, जो एक्सेशन के जो रूल्स थे उनको पढ़ लीजिए कि उनके रूल्स क्या थे।
वहाँ का जो रूलर था उसको डिसाइड करना था। हाँ, उसके पास बिल्कुल ये था कि वो अपने अपने लोगों से, अपने जो एलीट क्लास है उनसे डिस्कशन करता। अब कश्मीरी मुस्लिम्स का जो एलीट लीडर है, जो प्रोमिनेंट लीडर है शेख अब्दुल्ला, वो भी यही चाहते थे कि वो इंडिया के साथ एक्सेस करे, कश्मीर पाकिस्तान के साथ ना करे। जो महाराजा है वो भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ ना एक्सेस करे, एक्सेशन ना हो। द फर्स्ट शॉक टू दिस कन्विक्शन, बड़े ध्यान से सुनिए, first shock to this conviction had come a few days later in Red Cliff Award, which defined the actual line of demarcation between India and Pakistan. To our surprise, strip of Muslim majority area contiguous to Pakistan had been included to Indian side at point where their only road link between Kashmir and India could be developed. Until then, all important contacts of Kashmir with the outside world had been by two major roads running through the proposed Pakistan territory, but now the possibility was provided for a hit hitherto insignificant fair weather track from Jammu to Kathua to be developed into road going to India। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब वही ना माइंडसेट बना लिया कि हमारे हमारे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन खैर आप देखते रहिए कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसा एरिया जो कि इन पाकिस्तान में आना चाहिए था वो इंडिया को दे दिया गया, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। तो इसलिए जो है वो कश्मीर का जो चांस था पाकिस्तान में जुड़ने का वो हो गया। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ से ही 3-4 पॉइंट आपको दिखते हैं। पहला, जो महाराजा थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, शेख अब्दुल्ला वो नहीं मिलना चाहते थे। अब्दुल्ला ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो डिनाई किया था। उसके बाद देखिए आप ये खुद ही बता रहे हैं कि एक एरिया जहाँ से इंडिया और कश्मीर का जो है वो रोड थी और वो उनसे बड़े आराम से वहाँ से आवाजाही हो सकती थी, वो भी जो है वो इंडिया में आ गया। तो यहाँ पे ये खुद ही बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो तो इंडिया के फेवर में थे, लेकिन स्टिल हम आगे चलते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंगली इनके खिलाफ साजिश हो रही थी। Thus, at least one difficulty in the way of Kashmir accession to India was removed, and the Maharaja may well have begun his negotiation in that direction। यानी कि यहाँ पे आप देखें ये एक तरह से एक इंट्यूशन दे रहे हैं, या एक जो है वो इनका एक फियर जो है यहाँ पे दिख रहा है कि जो महाराजा है और भारत है उनके बीच में नेगोशिएशन शुरू हो गई थी। So far as accession to Pakistan was concerned, there had in fact never been any real difficulty. As far as July, Lord Mountbatten, still Governor General of Undivided India, had assured him that in case of Kashmir's accession to Pakistan, no objection would be raised by India। अब यहाँ पे आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अपने आप को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं ये ऑथर। इन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए, 3-4 पॉइंट्स जो है तीनों चारों पॉइंट्स इंडिया के फेवर में जाते हैं। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि जो भारत है उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करता है तो। अरे भाई, इंडिया को डिसाइड ही नहीं कर रहा था, डिसाइड ही कश्मीर के महाराजा और वहां के लीडर्स को करना था। उन लोगों को डिसीजन लेना था, इंडिया को तो डिसीजन लेना ही नहीं था। वो प्रिंसली स्टेट उनके कंट्रोल में थी, उनको डिसाइड करना था। तो आप ये देखिए खुद को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। पहले ही 3-4 रीजन बता दिए कि किस तरह से भारत के साथ उनके जो है मिलने के चांसेस थे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ जो है पाकिस्तान के साथ एक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अरे भाई, आप खुद तो बता रहे हो कि उनके साथ ना तो महाराजा मिलना चाहते हैं, ना ही शेख अब्दुल्ला मिलना चाहते थे जो प्रोमिनेंट लीडर थे, ना ही जो है उनकी नेगोशिएशन हुई। खुद ही बता रहे हैं कि इंडिया के साथ नेगोशिएशन भी शुरू हो गई थी महाराजा के, लेकिन फिर भी अपनी ही बात को काउंटर कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं।
आगे वो कहते हैं कि as far as July, as far back as July, Lord Mountbatten, still Governor General of Undivided India, had assured him that in the case of Kashmir's accession to Pakistan, no objection would be raised by India. Neither did any particular difficulty exist inside Kashmir itself, as all political leaders of the two major parties, the Muslim Conference as well as National Conference, were safely behind bars. बट स्टिल द महाराजा कंटिन्यू टू रिमेन अनडिसाइडेड। अब यहाँ पे आप देखें कि खुद ही मतलब मुझे नहीं पता ये क्या कहने की कोशिश करे, खुद ही इन्होंने बोला शेख अब्दुल्ला इंडिया के साथ एक्सेशन करना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन खुद ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वो मिलना चाहते थे। मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, दोनों चीजें नहीं हो सकती, लेकिन ये अपने माइंड में जो है यूटोपियन कॉन्सेप्ट बना लिया था कि क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमें मिलना चाहिए। और मतलब वो जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी माइंडसेट है वो ही मुझे दिख रहा है इसमें। बट स्टिल द महाराजा कंटिन्यू टू रिमेन अनडिसाइडेड, यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे खुद ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि महाराजा ने डिसाइड नहीं किया। अरे भाई वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया इसका मतलब वो कंफ्यूज थे या उनके कुछ नेगोशिएशंस बाकी रहती थी। All he could bring himself to do was to sign a standstill agreement with Pakistan, and thereafter he just sat on the fence. It was not, however, a fence, but a volcano that he sat upon. His attitude created the gravest suspicion and uneasiness. The ugly trouble that had erupted over the rest of the subcontinent could not fail to arise in his state as well. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो महाराजा उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को अगर आप चेक करेंगे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करेंगे। प्लीज इसको गूगल सर्च करें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या था। इसका मतलब नहीं था कि जो वो प्रिंसली स्टेट है वो जिसके साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ ही वो अनेक्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो राजा है महाराजा है उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, और इसकी वजह से पाकिस्तान के जो यूटोपियन माइंडसेट है, क्योंकि वो जो एक कामनेस है वो तो थी ही नहीं। ये भी आज भी आप देख लीजिए माइंडसेट में कामनेस तो है ही नहीं, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करके कुछ सोचते ही नहीं है। तो उस समय भी यही एटीट्यूड था, और इस एटीट्यूड के कारण देखिए पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो आज तक चल रहे हैं। और सारा का सारा मलबा किस पे डाल दिया, महाराजा पे। अगर महाराजा टाइम ले रहे थे तो उनको ले नहीं देते, गलती तो आपने की ना रीडिंग करके, प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट की। जो अगर वो बैठे थे महाराजा बैठ जाते, थोड़ा और टाइम लगता, 6 महीने लग जाते, आराम से वो डिसाइड कर लेते। For several decades, the Indian National Congress, leading the freedom struggle, had advocated the goal of free India that would be undivided and which would be ruled by a democratic majority. When the Muslim leader, believing that majority rule always consists of non-Muslims, keeping the Muslim in the subjugation as a minority, had raised the demand for Pakistan, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। अच्छा, यहाँ पे खुद सब करें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने हमेशा लीड किया था फ्रीडम स्ट्रगल को, और जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने भी, उनको अक्सर जो दोनों साइड के लोग हैं वो हटा देते हैं, साइड पे कर देते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, उसका साथ साथ बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को जो है वो लीड किया था। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसमें क्या होता कि जो मेजॉरिटी है वो हम पे रूल करती है और हमें सब्जुकेट करती। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जो जो काम करेगा वो आगे जाएगा। डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब ही यही होता है कि जिसके पास जो एजुकेशन लेगा, जो अपने आप को अपलिफ्ट कर लेगा, जो जिसको बात करने का सलीका होगा, जिसको पॉलिसी मेकिंग आती होगी, जिसको लोगों को लीड करना आता होगा, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। इसमें किसी को सब्जुगेट करने ना सब्जुगेट करने की तो कोई बात ही नहीं है, और जो डेमोक्रेसी है वो खुद से करेक्ट कर लेती है अपने आप को। लेकिन इनका जो डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसा ही दूसरे व्यक्ति को, या जैसे व्यक्ति की खुद आइडियोलॉजी होती है वैसी ही वो दूसरी सामने वाली आइडियोलॉजी को मानता है। तो जब आप खुद
जिम्मी का कॉन्सेप्ट है आपके अंदर, तो आपको ये लगेगा ही कि अच्छा हम हमारे अंदर अगर जिम्मी का कॉन्सेप्ट है तो उनके अंदर भी होगा। लेकिन स्टिल आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि raised the demand for Pakistan a separate homeland for Muslims. It had arose bitter feeling all over the subcontinent. For the past year or so, the fancy has resulted in communal riots of an unprecedented magnitude. When ultimately partition had come, fear had led millions of people suddenly to start shifting from one dominion to other, and in that process, law and order had broken down, and there had been untold massacres. The unfortunate occurrence had not yet ended. There was hardly a corner of the subcontinent which had not been affected. In such an atmosphere, how could the land of Kashmir remain unaffected? यानी कि यहाँ पे ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि क्योंकि कॉम्युनल एक कम्युनिटी ने कॉम्युनलिज्म के बेसिस पे पाकिस्तान की डिमांड की, उसने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है अफेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनकी आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पार्टी पाकिस्तान की डिमांड से ही ये रॉयट्स जो है वो शुरू हुए थे। अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा, मोपला मैसेकर देख लें, नोआखली मैसेकर देख लें, वो सब मैसेकर्स देखें जो कि हुए भारत में। किसके लिए? खिलाफत के लिए। टर्की में खलीफा आ जाए, खलीफा की जो है वो पावर दोबारा आ जाए, उसके लिए किए गए। तो इसकी उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। खैर मुझे इतना इतना तो है कि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक कम्युनल डिमांड मांग कम्युनैलिटी पे या कम्युनल एंगल से डिमांड की गई, उसका इफेक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हुआ और वो रहेगा। ये चाहे हम जितने सारे लोग आज भारत में अमन की आशा की बात कर लें, लेकिन अभी तक लोग भूले नहीं हैं। जब तक वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होता तब तक लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आइडिया ऑफ पाकिस्तान फेल कर गया। There, the non-Muslim minority lived in fear of the Muslim, and had the Muslim majority being totally unarmed, lived in fear of Maharaja, his troop, the armed non-Muslims। यानी कि जो यहाँ पे ये देखिए अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी थी वो किससे डरती थी? मुस्लिम से। और जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो किससे डरती थी? महाराजा से। ट्रूप एंड द आर्म नॉन मुस्लिम, यानी कि जो उनकी महाराजा के अंदर ट्रूप और आर्म थी वो नॉन मुस्लिम थी। ऐसा नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते हैं प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं ये एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है, तो उसके हिसाब से ही मैं बताऊंगी। That so far no bloodshed had occurred in tribute to the patience of the people, but how long could this last? When the ruler kept the issue of the accession indefinitely in suspense, and when unlikely the ruler of other state, he made no move even to give some constitutional power to his own people, or even to make a gesture by releasing the political leader, something bound to happen, and it did. तो यहाँ पे जो है वो आज की स्ट्रीम जो है वो हम खत्म करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये लास्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो रीजन ये बता रहे हैं, या पूरा का पूरा जो इन्होंने ब्लेम है वो महाराजा पे डाल दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट से, एक पर्टिकुलर वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू से किताब लिखी गई है, तो इसको वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझिए। यहाँ पे आपको इस किताब को पढ़ने का रीजन ही मेरा ये है कि आपको माइंडसेट जो है पाकिस्तान का, यूटोपियन वर्ल्ड व्यू जो है पाकिस्तान का, उसकी अंडरस्टैंडिंग आए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी। जो यूटोपियन वर्ल्ड व्यू होता है वो इसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, इसी तरह से लोगों को बहकाता है। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में पूरा का पूरा जो है वो जो प्रॉब्लम्स का रीजन जो है वो महाराजा को बता दिया। तो इसी के साथ हम आज की ये स्ट्रीम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।